السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب تم نماز قائم کرنے لگو تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو اپنی کونیوں تک دھو لیا کرو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کے اوپر مسح کر لیا کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لیا کرو، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَرُوا، اور اگر تمہارے اوپر غسل فرض ہے تو غسل کر لیا کرو، اس سے طہارت لے لیا کرو۔ یہ جو فرائض ہیں یہ وضو کے فرائض ہیں، اور چونکہ اللہ کے حضور تمہیں پیش ہونا ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، ایک تو یہ ہے کہ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، تمہیں اس بات کا علم تو ہو کہ تم کہہ کیا رہے ہو، کہ اللہ سے ہم کلام ہونے لگے ہو، اس سے گفت و شنید کرنی ہے، تمہیں معلوم ہی نہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، نہ سننے والے کو سمجھ آئی تمہارے کہنے کی، نہ کہنے والے کو بات کی سمجھ آئی تو اس کا پھر کیا فائدہ۔ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، تمہیں یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ سے گفتگو کیا کرتے ہو۔ ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ ہمیں نماز کا ترجمہ آتا ہونا چاہیے، اور چونکہ خالق کائنات کے سامنے کھڑے ہونے لگے ہو، پھر تمہارے اندر اور باہر کسی قسم کی کوئی غلاظت نہیں ہونی چاہیے۔ ہر طرح کی غلاظتوں نجاستوں کو اپنے جسم سے پاک کر لو۔ اگر تم اندر سے یا باہر سے غلاظت کے بھرے ہوئے ہو تو اللہ کے حضور تمہیں کھڑے ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بظاہر انسان اپنا منہ دھو لیتا ہے، اچھے کپڑے پہن لیتا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الطہور شطر الایمان، طہارت جو ہے وہ آدھا ایمان ہے، نصف ایمان ہے۔ محض منہ کو دھو لینے سے، صاف کپڑے پہن لینے سے الطہور شطر الایمان کے مقام کو انسان نہیں پہنچ سکتا، جب تک کہ اس کا اندرون اور بیرون دونوں صاف نہ ہو۔ اس کا دل و دماغ صاف ہونا چاہیے، اس کی آنکھ صاف ہونی چاہیے، پھر وہ الطہور شطر الایمان کے مقام کو پہنچے گا۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے الطہور شطر الایمان کے مقام کو، جی صفائی جو ہے وہ تو نصف ایمان ہے۔ پھر اس میں ایک ایسی بات جس کا تعلق انسان کے اندرون سے بھی ہے، بیرون سے بھی ہے، وہ ہے منہ کی صفائی۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے السواک مطہرۃ للفم، مسواک جو ہے وہ منہ کے صفائی کا ذریعہ ہے، نہ صرف منہ کے صفائی کا ذریعہ ہے بلکہ فرماتے ہیں مرضات للرب، اللہ کو راضی کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ مسواک اتنی اہم ہے، اگرچہ اس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لیکن یہ انسان کے لیے اتنی ضروری ہے کہ دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے۔ مسواک کے بغیر حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इस मसवाक के बारे में इतनी ताकीद की कि जब भी मेरे पास आते मुझे मसवाक का हुक्म करते, और मुझे यूं लगा कि ये मसवाक करते करते मैं कहीं अपने जबड़े है जो हैं वो घसा ना बैठूं, इतनी मसवाक हजूर अलैहिस्सलाम किया करते थे। फिर फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ताकीद से मुझे यूं महसूस होता था कि ये मेरी उम्मत के ऊपर मसवाक फर्ज कर दी जाएगी। ये दुनिया की कामयाबी है। देखिए, अगर एक इंसान अपने मुंह को साफ रखता है, मसवाक करता है, उसके दांतों से चमक निकलती है, उसकी मुस्कुराहट में खिलखिलाहट आती है, उसकी गुफ्तगू अच्छी लगती है। इसके बरक्स अगर एक शख्स अपना मुंह साफ ही नहीं करता, वो बीमारियों में मुब्तला हो जाता है, उसका मुंह गंदा नजर आने की वजह से लोग भी उससे नफरत करते हैं। सिर्फ रब ही उससे नफरत नहीं करता, लोग भी उससे नफरत करते हैं। इसलिए इस मसवाक को अपनाना होगा अपने लिए, अपने जिस्म के लिए। डॉक्टर जाकिर नाइक की एक किताब है खुतबात जाकिर नाइक, उसमें एक हवाला उन्होंने लिखा है डॉक्टर एस.एम. इकबाल के हवाले से। वो कहते हैं कि एक शख्स था जिसके दिल की झिल्लियों के इर्द गिर्द रेशा पैदा हो गया। वो डॉक्टरों के पास गया, डॉक्टरों ने उसे दवाई वगैरह खिलाई, आराम ना आया। बिलाहर डॉक्टरों ने यह फैसला किया कि तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। कहते हैं कि ऑपरेशन कराया, घर में आया, चंद महीने गुजरे, फिर देखा, फिर जो रेशा है वो पीप जो है फिर वहीं की वहीं मौजूद थी। वो एस.एम. इकबाल साहब कहते हैं कि वो मेरे पास आया, मैंने कहा जरा अपने मुंह का मुआयना कराओ। मैंने उसका मुंह खोला तो उसके मसूड़ों के अंदर पीप भरी हुई थी, रेशा भरा हुआ था। मैंने कहा सबसे पहले अपने मुंह की सफाई करो, पीलू की मसवाक, मैंने उसे कहा कि पीलू की मसवाक ले लिया करो और इसको इस अंदाज से अच्छी तरह मसवाक करनी है, अपने मुंह के साथ इसका ब्रश बनाना है, अच्छी तरह मसवाक करो। और दूसरी दफा जब मसवाक 2 घंटे बाद करने लगो तो पहला ब्रश काट दो और नया ब्रश बनाओ, ताकि वो जो चबाने का अमल है वो ज्यादा से ज्यादा हो। वो कहते हैं उसने ऐसा अमल शुरू कर दिया। देखते ही देखते उसका मुंह जो है वो गलाजतों से साफ हुआ और चंद हफ्तों के बाद उसके अंदर किसी किस्म की कोई बीमारी ना रही। अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत के जरिए उसे इतनी शफा जो है वो दे दी। हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हो 8000 का लश्कर लेकर मिस्र की तरफ रवाना हुए। बवैस नामी किला है, उसका मुहासरा किए हुए कई दिन गुजर चुके, कामयाबी हासिल नहीं हो रही। बड़े परेशान हुए कि 8000 का लश्कर लिए हुए एक कला हम फतह नहीं कर सके। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो का जमाना था। एक कासिद भेज दिया रुका लिख कर कि हम कई दिनों से एक कला है जिसका मुहाजरा किए हुए हैं, हमें कामयाबी हासिल नहीं हो रही, क्या किया जाए। अमीरुल मोमिनीन ने बड़ी हैरानगी का इजहार किया और आगे से लिख कर भेज दिया, मुझे यूं लगता है कि कोई ऐसी सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसको तुम पसे पुष्ट डाल चुके हो, देखो कौन सी सुन्नत है। अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन की बात गलत नहीं हो सकती। हम सोच में पड़ गए कि आखिर हमने कौन सी दुआ नहीं कर रहे, कौन से नवाफल नहीं पढ़ रहे। हम इस नतीजे पे बिलाखिर पहुंचे कि कई दिनों की जंगी मसरूफियत की वजह से सारे के सारे सहाबा जो हैं वो मसवाक नहीं कर सके। मैंने सबको हुक्म दिया कि उठो और दरख्तों के ऊपर चढ़ जाओ, वहां से टहनियां तोड़ो और मसवाक करना शुरू कर दो। कला के बाहर एक नदी थी, 8000 का लश्कर एक जगह पे बैठ के अपने दांत साफ कर रहा है। अजीब मंजर था। ऊपर से किले वालों ने देखा कि आज तो मुसलमान पता नहीं कौन सी नई हिकमत अमली अपनाए हुए हैं। किसी ने कहा मुझे तो यूं लगता है कि आज तुम्हें कच्चा चबाने के लिए ये अपने दांत तेज कर रहे हैं। अल्लाह ने उनके
दिलो दिमाग में ऐसा रोब जारी कर दिया कि उन्होंने कले के दरवाजे खोल दिए, मुसलमानों से सुलह कर ली। अल्लाह ने मुसलमानों को इस सुन्नत की वजह से जो है वो इतनी कामयाबी और कामरानी दे दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाने में दुनिया की भी कामयाबी है। इस रवायत में अगरचे ज़ौफ पाया जाता है, एक तरफ छोड़ दीजिए इस रवायत को, आप देखिए कि अगर कोई शख्स ऐसा जो अपने मुंह की सवाई नहीं करता, आपका कोई दोस्त, आपका मिलने वाला रिश्तेदार, आप उसको दूर से देखते हैं, उसने अच्छा लिबास पहना हुआ है, आप उसे बड़े मुतासर होते हैं, यार कितना प्यारा लग रहा है, इतना अच्छा लिबास पहना हुआ है। करीब आया, उसने परफ्यूम भी बहुत आला लगाया हुआ है, आपको उसकी खुशबू भी महसूस हुई, क्या कहते हैं, सूटेड बूटेड है जी। उसका मुराल आपके ज़हन में इतना बुलंद हुआ कि आसमान की बुलंदियों को छूने लगा, लेकिन जब वो आपके करीब आया, उसने गुफ्तगू शुरू की, उसके मुंह से आपको बू आई, यकीन कीजिए आप कोशिश करेंगे कि ये मेरे से दूर चला जाए या मैं इससे दूर चला जाऊं। आप उसको ये भी नहीं कह रहे कि तेरे मुंह से बू आ रही है, क्योंकि किसी को अगर ये कहा जाए तो बहुत ही बुरा मनाया जाता है कि किसी के मुंह से बू आ रही है। अब आप उससे दूर भाग रहे हैं, तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि जब तुम नमाज के लिए, तलावत के लिए खड़े होते हो तो फरिश्ता तुम्हारे करीब आ जाता है, तुम्हारी तलावत सुनते सुनते वो तुम्हारे होंठों के ऊपर अपने होंठ जोड़ लेता है और सारी की सारी तिलावत जो है वो उसके पेट के अंदर चली जाती है। इस हदीस को जाकिर नायक ने तो लिखा ही यूं है कि अगर तुम मसवाक करके खड़े होते हो अल्लाह के हजूर तो फरिश्ता तुम्हारे करीब आता है। इसका मतलब ये है कि मसवाक के बगैर फरिश्ता भी तुम्हारे करीब नहीं आएगा। और जब नमाज, हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स मसवाक करके अल्लाह के हजूर खड़ा होता है उसको उस शख्स से जो बगैर मसवाक के नमाज अदा कर रहा है 70 गुना ज्यादा सवाब मिलता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर मुझे इस बात का डर ना हो, लौला अन अशुक्का अला उम्मती, कि मेरी उम्मत के ऊपर ये शाक गुजरेगा, इनको मुसीबत नजर आएगी, लअमरतुहुम बिस्सवाकी इंद कुल्ली सलाह, मैं हर नमाज से पहले हर बंदे के ऊपर जो मसवाक है उसको फर्ज करार दे देता। ये तो हमारा जो है ख्याल की है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हमें ये सोचना चाहिए कि ये हमारे ऊपर फर्ज है, मसवाक फर्ज का दर्जा रखती है, और हर नमाज से पहले कोशिश कीजिए कि मसवाक की जाए, क्योंकि मसवाक करने से वैसे भी दुनिया की बीमारियां दूर होती हैं, इंसान के अंदर से मैदे की बीमारियां दूर होती हैं, सर का दर्द दूर होता है, बलगम खत्म हो जाती है, मैदे के अंदर हरारत है वो खत्म हो जाती है, अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, अल्लाह राजी होता है। और जब बंदा कल फोत होने लगेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्ते की ड्यूटी लगाएंगे कि इसे ज्यादा तकलीफ ना देना। मसवाक करने वाला शख्स, उसका अंजाम नबियों के साथ, सिद्दीकीन के साथ होगा, उसके लिए जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जहन्नम के जन्नत के आठों के आठे दरवाजे जो हैं वो खोल दिए जाते हैं, और उसकी कब्र को इतनी वुसअत मिलेगी कि ता हद नगाह, जहां तक उसकी नजर जाती है वहां तक उसकी कब्र को खोल दिया जाएगा। एक मसवाक फायदा हमारा, और देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत किस कदर बंदे से राजी है इस मसवाक करने की वजह से। और ये मसवाक, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में दाखिल होते तो क्या करते, तो फरमाती हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले घर में दाखिल होते और मसवाक करते, फिर हमसे गुफ्तगू करते। और हजूर अलैहिस्सलाम जब भी किसी मजलिस में जाते पहले मसवाक करते, फिर लोगों से गुफ्तगू करते। और मसवाक करने से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें तो पूरी होती हैं, लेकिन देखिए कि आज की जदीद साइंस भी इस बात को मानती है
डॉक्टर कहते हैं रात के वक्त जो तुम मसवाक करते हो तुम अपने लिए करते हो, दिन के वक्त जो करते हो लोगों के लिए करते हो, क्योंकि असल जरासीम जो पैदा होते हैं मसवाक से वो रात के वक्त पैदा होते हैं जब तुम्हारा मुंह बंद होता है। इसलिए इसको दिन रात अपनाओ। देखिए अगर मसवाक की इतनी अहमियत और फजीलत ना होती तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जाने से चंद लम्हे पहले हजरत आयशा कहती हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ टेक लगाए हुए इस तरह बैठे हुए हैं कि उनका सर मुबारक मेरे मुंह को जो है वो छू रहा है। मेरे भाई अब्दुर रहमान आए, उनके हाथ में एक ताजा मसवाक थी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मसवाक की तरफ देखते जा रहे हैं और नकाहत इतनी थी कि बोल भी नहीं सकते थे। दुनिया में आपने हजारों लोगों को मरते हुए देखा होगा, कभी किसी को मरने से पहले इस दुनिया से जाने से पहले मसवाक करते हुए नहीं देखा होगा। हजूर अलैहिस्सलाम के विसाल का वक्त है, बोल नहीं सकते, उस मसवाक की तरफ देखते जा रहे हैं। मैं समझ गई कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसवाक करना चाहते हैं। मैंने पूछा या रसूल अल्लाह मसवाक करनी है? तो हजूर अलैहिस्सलाम ने तबस्सुम फरमाया। मैंने बाई से मसवाक पकड़ी और अपने दांतों से मैंने उसका ब्रश बनाया, उसे चिबाकर हजूर अलैहिस्सलाम को मसवाक कराई। अभी मैं मसवाक करा के फारग हुई थी कि हजूर अलैहिस्सलाम की जबान से ये अल्फाज जुदा हुए, अल्लाहुम्मा रफीकिल आला अर रफीकिल आला अर रफीकिल आला। हजूर अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रहलत फरमा गए। देखिए हजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के लिए एक ऐसा पैगाम छोड़ा कि देखो मैं सारी जिंदगी तुम्हें ये कहता रहा कि मसवाक करते रहना, मसवाक करते रहना, इससे रब राजी होता है। मैं तुम्हारे लिए इस पैगाम की और तकवीयत देकर जा रहा हूं कि दुनिया से जाते हुए भी मैं तुम्हारे सामने ये नमूना पेश कर रहा हूं कि मैं जाते हुए मसवाक करके तुम्हें बता रहा हूं कि ये मसवाक कितनी जरूरी है। अब एक बात मुख्तसर सी, चूंकि टाइम हो चुका है, कि अक्सर आप लोगों के ज़हन में सवाल होगा कि ब्रश, पेस्ट और मसवाक क्या वो इसका मुतबादल है? इसमें आइमा कराम में इख्तलाफ है, लेकिन चूंकि आका करीम ने फरमाया था अस्सिवाक मतहरतुल लिल फामी, मसवाक जो है वो मुंह की सफाई का जरिया है, तो चूंकि हम पेस्ट से भी मुंह की सफाई ही तो करते हैं, लेकिन इस बहस को खत्म करने के लिए, ये बहुत बड़ी बहस है। देखिए कुछ लोग कहते हैं जी एक गिठ लंबी मसवाक होनी चाहिए, तो जो औरतें जो हैं वो छाल से अपने दांत साफ किया करती थी, वहां ये मसला कहाँ गया? सक जिसे हम बोलते हैं, सक से हजूर अलैहिस्सलाम के दौर में भी सक से मसवाक किया करते थे। ऐसी कोई हदीस नहीं है कि एक गिठ लंबी मसवाक होनी चाहिए। मुख्तसर बात यह है कि जो शख्स मसवाक करता है वो लकड़ी को अपने दांतों से चिबाता है, वो ज्यादा बेहतर है इस ब्रश से। लेकिन क्योंकि ये भी मुंह की सफाई का जरिया है, ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ही है, क्योंकि मुंह की सफाई करनी मतलूब है, वो इससे भी हो रही है, उससे भी हो रही है। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। For more useful videos, please subscribe to our channel. Thank you.